A very good evening to each and everyone present here today. I, Sakshi Chauhan, is very pleased to extend a cheerful welcome to you all on day 3 of Android Study Jam session. So, guys, if you have any questions during the presentation, please put them into the chat box. Your questions would surely be answered. So, yes, let's get started with the day 3 session. I would like Rishabh to continue. Okay. Am I audible clearly? Yes, Rishabh. Okay. Good evening, everyone. Let's start with the third day of Android Study Jams. And today we will be covering the pathway 1 and 2 of the second unit of the course. So the learning objective of today is that first we are going to revise the first Android app that we made in the previous session, that is the Dice Roller app. Then we will build our second app, that is a tip calculator app, which is covered in the pathway 1 and 2 of the second unit of the course. Then we will use the material UI to make the user interface better for this app. And lastly, we will learn the theoretical part of scroll view and the recycler view, so that in the next session we can start implementing recycler view in our Android apps. So you can just go to this link and check out the course. So firstly, what we will do is we will revise this Dice Roller app, and then we will be completing these two pathways here. The pathway 1 and 2 of the second unit. So I hope that you all have already completed with the unit 1 and you all have tried these two units by yourself. So let's start with it. Okay. So the recap of day 2. Let me open that project that we made in the last session on my Android Studio. Also, if you all have any questions, feel free to put it in the chat box and I'll try to answer them. Okay, so this was the app that we built in our last session on day 2. So this is the Dice Roller app. Let me just run and show in case someone here is new and attending the session for the first time. Okay, so it's here. So this was the app that we built in our last session. When we click here, it generates a random number and it shows the image of that dice here. So let's take a look at the project code here as what all things we implemented here. Okay. So first let's start with the front end, that is the user interface part. So all we used was an image view and a button. So this is the image view where we show the image of the dice and we programmatically change the number of the dice or the image of the dice according to the random number that gets generated from our code's logic. And then we have a button here. So whenever the user clicks a button, it generates a random number and then we dynamically change the image resource of this image view to show the specific image. So to implement that, what we did was we took 6 different dice images here, and according to the random number that gets generated, we show that image. So this was all about the front end part. We had an image view and we had a button, and we had some different resources. Like for example, in image view, we
kept our image source as dice1 by default, so that when the app starts, it will load as dice1. Then we can change different properties. This is not needed. These all properties are automatically created when you add the constraints. So the parent view group here is the constraint layout. This is by default what comes in any new Android activity that you create. So inside our constraint layout, we have our image view, and it is constrained to all the sides. So therefore, it will always remain at the center of our screen, irrespective of different screen sizes or the orientation of the screen. And then we used this image view as our as a relative child class to position our button here. So what we are telling our Android Studio is that horizontally it will always remain in the center of the screen, but vertically it will remain 50 dp below our center image. So that is how we assigned the relation to these two objects in our constraint layout. Now let's move on to our backend, that is our Kotlin file. So firstly, what we did was we created the hooks for our image view and the button. So what are hooks? Hooks are nothing but we are defining a relation of these two objects, that is image view and the button, to our Kotlin file. So we created two new variables, that is a dice value and a button of type image view and of type button. And then we use the find view by ID to create the relation between these two objects. So our dice value variable that we created here, it is linked to the dice value object here, that is the image view. And similarly, our button is linked to the variable named button similarly. So once we have created the hooks, now our Kotlin program knows that whenever we call the dice value, we actually mean this image view. And similarly, whenever we call the button variable, we are referring to this button here, the button view. So after that, we set a new on-click listener. So what an on-click listener does is whenever we click on the button, this function will get called on-click listener. Inside that, we created a variable named number in which we are storing a random number between 1 to 6. And then we used a when condition, and depending on the number that gets generated, we are changing the image resource of the dice value. That is this image view. So when it is 1, the image will be changed to 1, and similarly for every other criteria. And at the end, after the image is changed, we are displaying a toast message. So when you click this pop-up message that comes, this is a toast message here. So this was all we did in our first app. Now, let's move to our next slide. So the new project, that is a second app of Tip Calculator. So let's close the emulator for now, and let's close this project. Now we have to make a second app, that is a Tip Calculator. So let's create a new project. We will be choosing empty activity, and let's name it Tip Calculator. Package name is fine, we don't have to change this. Location, it's up to you where you want the project location to be. Language is Kotlin, and the minimum SDK version is Android 6.0. So our app will not run on any device that is below Android 6.0 Marshmallow. Let's click finish, and it will take a few seconds, up to a minute, to build the project. Just give it a minute to load all the files. Okay. So let's run it on emulator as itself. So the Gradle build starts running right now. By the time the Gradle build is running, let's look at the final screen that we have to make. So this is the end result that we are expecting. We are making a simple tip calculation app. So where the user can enter the amount of the bill, and he can select
how was the service. That is either amazing, good, or okay. And depending on how the service was, he will be tipping a specific amount to the staff, to the restaurant staff. So, and then we are also giving him an option to round up the tip. So if this is turned off, he will get an exact value depending on the percentage that he selects. And when the roundup is turned on, he will get the nearest integer value. And when he presses calculate, it will take this value as an input, and depending on whatever amount he selects, he will get a tip value here. So this is the tip amount that will be shown. So this is something that we are expecting to make. Now I hope the Gradle build is done. Okay. We are having some error. Give me 1 second. All right. So this is the basic Hello World app. So it's running fine. So we can start with the code. Okay. Let's also open the last project, that is our dice roller app, because I want to show you something. So let's remove this Hello World text view for now. And we will keep this slide here so that we can use this as a reference. So first what we need is, first we need to change the title here. So as you can see right now, okay, it is fine. But even if you want to change this title right here, if you remember, what we need to do is we have to go to the manifest file, Android manifest, and then we have to change the label here. So here we can change any name that we want. Let's change it to tip calculator app and run it again. So first we need an edit text, then we have to use these radio buttons. So if you remember, these type of buttons in which you have multiple options, but you can only select one option. These buttons are called radio buttons. And to make that option possible that you can only select one, you have to place all the radio buttons inside a radio group. So if we have a radio group and inside that radio group we have these 3 radio buttons, then we can only select one of the 3 options inside the radio group. Then we have a switch here. This is called a switch. And then we are going to add a button. And in the end, we are going to add a text view. So in total, we have one edit text, 2 text views, 2 different text views. Then we have a radio group. Inside that radio group, we will be having 3 different radio buttons. And then we are going to be having a switch and lastly a button here. So let's start making it. Okay. So first we will add an edit text. That is going to be for our app content and max variant. Okay. App content. And by default, let's set an hint. Name, total amount. Now, since it is a constraint layout, we have to add constraints here. Horizontal and vertical constraint, and then top constraint. We place it here. Or let's say somewhere here. Okay. So this is our edit text right here. Let's keep the width as 300 dp. Or maybe 200 for now. Okay. So this is our edit text, and as you can, let me run it. Okay, so as you can see, when we click on this edit text, we get the keyboard, right? So this is the default keyboard that we get. But since we are going to only enter amount, so we don't need alphabets, we only need the number keyboard. So what we can do is we can add a new property called input type. And in this, we can select different types of inputs. So depending on what you need to do in the edit text, you can select different types of input that you want from user. So in our case, we want number.
So we can have number and run it again. So now only the number keyboard will come. So this is more relevant here. Then what else do we need here? Now we need to have a new text view. Okay. So below the edit text, we are going to add a text view, wrap content, and then we have to add a text saying how was the service. Okay, so you are getting a warning here. Press Alt Enter, and we will suppress this warning for hard-coded text everywhere for now. Okay, so we need this text view to be below the edit text, right? So what we have to do first is we have to take the upper part and we have to add it as a constraint below it. So now it will be below it, and then we have to add the left and right constraint. So you can do this like this by dragging, or else what you can do is you can go to the attributes, and from here also you can change different things. So we want it to be here, somewhere here, and this looks fine to me. Okay, let's change the name. So for this edit text, we can give a name something like tip value. Okay, so since this is a constraint layout, for every different view that we add, we have to give an ID. So that because every element that we add in a constraint view, it is positioned with the relation to each other. So we have to give every different view a different ID so that we can relate with every other element. So for this text view also we can give any ID. So let's say for now, text view how, maybe how. So below this, what we need to add is 3 radio buttons. So if you remember, all the radio buttons have to be inside a radio group. So we will create a radio group first. Wrap content. Then we will give it a name. That is an ID. So ID and then R group. Okay. So after that, we will add 3 radio buttons to inside this radio group. Radio button and give it a name. R button 1. Then text. The first text that we want is amazing and 20%. Now, what we will do is similarly, we will click on the upper part of this radio group and we will add the constraint to below this hover service. And similarly, we will add a constraint to the left and the right side. And we will place it wherever we want. So this looks good for now. Now, we have a radio button here. But okay. We have to place the radio button inside the radio group. Now we want 2 more radio buttons, right? So let's just copy paste it and change the values. Radio button 1, radio button 2, and radio button 3. And the text should be different, right? So instead of, let's keep it, okay, 18% for good service. And for okay service, let's keep it, let's say 12%. Okay, so now we have our radio group here, and
We'll place it somewhere here. So this looks fine for now. We will change the layout a little bit later on. What else do we need? Okay, so we want a switch now, and below the switch we have a button and then a text view again. So outside the radio group, we have to add a switch. Switch, wrap content, wrap content. Yes, Kevin, we had made one app in the last session. You can see the video on our YouTube channel if you want. Okay, so we are going to add a switch and then we have to add some text to switch. So what was the text that we have to add? Round it up. It will be match parent. So it will fill the whole layout. And what we can do is we can add padding. So padding is nothing but we are going to be adding internal margin from both sides. So we can do padding horizontal and 10 dp. So as you can see from both sides, it will go 10 dp inside. Or if you want 20 dp, then we will give it a ID that is switch round. You have to close it and then we have to add constraints here, right? So we will just drag it below our radio group and left and right constraints are fine. And we will clear all the suppress all the warnings. Okay, so now we have our switch here. Below the switch, we need a button. So after the switch, we will create a new button. The width will be match parent and the height will be wrap content. And the text here should be calculate. And we have to place this button below our switch. Okay. So we have added all the constraints. Okay. If you remember, for every view that you have in your layout, you need to add 3 constraints at least out of the 4. So you need to keep that in mind or else you will get an error. So we are having 2 warnings. Let's check it out. One is for the edit text. And the other warning we are having in the button. Okay, suppress hard-coded text for now. We can add a padding here as well. So we will be adding a horizontal padding of, let's say, 20 dp. Okay, this one to work here. Okay. So we can add a margin horizontal of 10 dp or even 20 dp if we want. This is fine. And below the text view, sorry, below the button, we have to add a text view. Okay, so if you all get confused somewhere, please just put it in the chat and I can let you know it as soon as possible. Okay, so below the button, we are going to add a last element that is a text view. So it will be wrap content, and the text that we are going to add is if amount and rupees, and by default it should be blank. Then we are also going to add a text size, let's say 20 dp. Okay, we can do something less. 15 dp is fine, I guess, for now.
for 18 dp. Okay, so now we have to. Okay, my bad. We use SP whenever we are using a text view. For every other element, we are going to be using DP, and for the text size, we will always be using SP. So there is an error, and the error is the constraint one. So we will add constraint here. So we have to place it below the calculate button, left side and right side, and then we'll place it somewhere here. And we will change the horizontal bias to 1. So what it will do is it will make it stick to the right part, and if you do it 0, it will stick to the left part of the screen. So you can do it 0.5 and it will always stay in the middle. So this is what the bias thing does to it. So we will do it 1, and we will add a margin right, or you can also use margin end. It is the same thing of 5 dp, 25 dp. Okay, so now this looks good. Let's compare it to what we have here, or we can also run it and check on the emulator. Okay, so we have an edit text here where we can enter the amount. Then we have a radio group inside which we can select any one element. Keep in mind, if you would have not placed all these 3 elements inside a radio group, like we just did here, we have all the 3 radio buttons inside a radio group, right? So if we would have not used a radio group and just added 3 radio buttons, then you would have been able to select all the 3 options and not just any one of these. So that's why we are using a radio group. And then we can use the switch to either round up the value or not. And then we can use this button to calculate the value, which will be shown here. And this text view has no specific purpose. So since we are finished with the UI part, let's go to the Kotlin file and code the logic here. Okay, so now the part that I wanted to show you is, since we have to implement the on-click feature here also, like when we click on the calculate button, then only the whole logic will work, right? So in our last app as well, we had set an on-click listener. So let's check it out. So this is how we implemented it in our last app, right? And this one, dice roller. What we did here was to implement this on-click listener. That is, whenever we click, our logic should be executed. So what we did was we used that button object. We first linked the button to a variable named button, and then we used that variable named button and set an on-click listener to it. So this listener, what it does is whenever we click on the button, it will listen to that instance and it will execute the function that we place inside it. So what we did was we set an on-click listener to our variable in the Kotlin file, right? So this is one way of doing thing, and there is another way as well, which is comparatively easier. So in this app, we will use the second way to implement the on-click listener. So just like the last time, what we can do is, give me 1 second. Okay. So if we wanted to do things same as last time, what we will do is we will create a variable named button, and then we will alt enter import. Okay. We will create a variable named button, and then we will use find view by ID to link the button. So here we created the hook, right? And now we will use this button variable to set an on-click listener. Okay. And inside this on-click listener, we would write our whole logic, right? But rather than doing this, we can also, what we can do is we can just go here and we want to set an on-click listener to our button, right? So just inside the button, in the XML file only, we will add an on-click property.
And inside the onClick property, we will just name a function. So let's say it click button. So this is the name of the function. And as you can see, you're getting an error and a warning. So just press Alt and Enter, and then you're getting a solution here, that is create click button function in the main activity. Click it. So now as you can see, the error and the warning has gone. What it did was it created a function here named click button. So just expand the function, and this function will operate same as the set on click listener here. So whatever logic we implement in this function here, it will also do the same work that the set on click listener method does. So these are the two ways of making an on click listener. And also using this way, you can also create an on click listener for different text views. So if you create an on click listener for the text view, what will happen is whenever the user clicks on this tip amount text, then also you can execute a different function. Okay, so we have set an on click listener. So what we need to do is whenever the user enters the amount, what we will do is we will take this amount, we will take the input from the user, then we will see which option is selected by the user, and then we will see if the switch to roundup is on or off, and then we will set the amount calculating everything. So the very first thing that we need to do is we have to link all the elements here. We have to create the hooks of all the elements so that our Kotlin file knows which element are we talking about. So the first element that we have here is edit text. So let's copy the name and let's create the hooks right now. Okay. So the first hook that we need to create is the tip value, which is of the type edit text is equal to find view by id r.id dot tip value. And what else do we have here? We don't have to create. Okay, just keep in mind we don't have to create the hook for this text view because we are not going to change anything in this text view dynamically, right? We don't even need to change the value, and we don't even have to read what is written in it. So we will not create a hook for this text view. So the next thing is radio group. So we need to have one for this also. So we will create a hook for the radio group. It is of type radio group is equal to find view by id r dot id dot r group also. So we don't have to create hooks for the radio buttons here because we can get the checked option from the radio group only. So using the radio group property only, we can check which of the following option is checked. For that, we have to set a default checked button. So what we will do here is we will set checked button. So by default, we have, let's say we will set this first radio button as the default checked option. So R button 1. So by default, this choice will be selected. Now we have a edit text and the R group hooked. What else do we need? The switch button. So let's copy the name. The third hook is val switch round. It is of type switch. And find view by id r.id dot switch round. After this, we have the hooks for the edit text, the radio group, and the switch button. Now we don't need the hook for this calculate button as well because we are calling this function here only, right? This all the things will be operating whenever we click on the button. So we don't need a hook for this as well. But we need the hook for this text view because we have to change the amount programmatically, right? Depending on all the other situation. So we will have to add an ID for this also. So let's give it any random name like tech. What can we give? Okay, let's give it new tip.
So val new tip, and what is the type of this variable? It is a text view. Text view is equal to find view by id r dot id dot new tip. So now we have created all the hooks for every different view elements that we will need. So now our Kotlin file knows that whenever we use the tip value variable, we are talking about this edit text here. And similarly for every other element, whenever we call the R group variable, we are talking about this radio group. That is all the three buttons here. And similarly, when we are calling the switch round, we are talking about the switch button. And similarly for the new tip, that is whenever we call the new tip variable, we are talking about this text view here. So now since we have all the hooks linked, now we can start the actual coding part. So we will do everything one by one. So what is the first thing that we need to do here? So the very first thing that we need is we have to read the input from user, right? So let's say I entered a value 100. I have selected this button and I have not selected this button. And when I click calculate, I want the new amount here, right? So the first thing that I need to do is I want to read the input that the user is giving here. So what we will do is we will create a new variable here. So let's say val amount, and the amount will be tip value dot, one second, get the name here. Okay, it is tip value only. Okay, so tip value dot the text inside it. So text to string. So this part, what it will do is it will take the tip value, that is this edit text, and it will take the text from it, that whatever the user has entered, and it will convert it to a string and it will return to this variable, that is amount. So for example, when I have entered suppose 155 and I press calculate, what it will do is it will store 155 as a string here in the variable amount. So amount will be equal to this. When I enter 155 and I press calculate, the value inside the amount variable stored will be 155 in strings. But I don't need the value in strings, right? I have to do calculations here, like multiplication and so on, and round up. So I need this string to be converted in a variable. That is, I need a double, because doubles are values in decimals, right? So what I will do is, I hope this part is easily understandable by everyone. We are just calling the edit text dot text to strings. So what it will do is it will take the input that the user has entered, it will convert it into a string, and now we have to convert it into a double. So to convert into a double, what we do is, let's just cut this part. And to convert anything into a double, okay, what we can do is we can just paste this whole thing inside a bracket. So this, what this part will do is it will give a string, right? This part will give a value of 155 in strings. So we will just convert this whole thing into double. So what it will give now is it will assign the value as 155 in the variable amount, and the variable amount is of type double, as you can see here. So one more thing that we can do is, rather than using double, we can use two double or null. So suppose two things can happen, right? User can also leave this as blank and then click the calculate button. So if you are using two double, what it will do is it will crash your app, because the value here is null. That is no value. But you have not designed the error case here. So it will crash your app. So to prevent that, we will be using two double or null. So what it will do is, if the user has entered any value like say 1111 and press calculate, so in this case it will assign amount as 1111, or else if user has not entered any value and just press calculate, then it will assign the null value to the amount. So now we have to deal with the null case, right? So what will happen if the user is entering a null value? So we have to create an if else situation for that. So if amount is equal to null, or amount
is equal to 0.0. Why I'm using 0.0 instead of 0? As you can see, it will give an error because the amount variable is a double, right? So we cannot use an integer here. So we have to enter 0.0. So if this condition meets, then this function will be called. So what are the two conditions? That either the amount here is 0 or amount here is null. So null amount will be there when user does not enter any values and press calculate. And the second part will be called when the user enters 0 as a value and presses calculate. So we just want to make sure that when any of these instances occur, our app does not crash. So what we will do is, whenever any of these things occur, we will set the amount here to be 0 by default. So to set the amount here to be 0, we have to change the data in this variable, right? So this view, what was the name of this view? It was the new tip, right? This one. The name of this text view is new tip. So what we will do is, in this case, we will just set the new tip dot text equals to, let's copy the default template here. And set the amount to be 0. So in either of this case, we don't have to worry about this error here. So it is not an error, it is a warning. So don't worry about this one. So let's run it. Okay. So as you can see, I did not enter a value, and what it did is it changed the tip amount to 0 by default. You can see it again. If I enter any value and then press calculate, nothing will happen because we have not designed the logic for that part, but we have designed a logic for the null value. So when it is null right now, right? And when the user presses calculate here, it will directly show the tip amount to be 0. So we have handled this case, and similarly, if the user enters 0, it will change the tip amount to 0. So now we don't have to worry about the errors or our app crashing due to null value, right? So now let's design the main logic. So this was about the if condition. Now let's make the logic to calculate the tip. So if this condition is not called, okay, so if the value is null, it will return. That is, the on-click listener will be concluded here. सो अभी हमें जो सेकंड कंडीशन है हमारा, दैट इज जब कोई एक्चुअल वैल्यू डालता है यूजर, लाइक फॉर एग्जांपल 580, तो इस टाइम पे जब कैलकुलेट पे क्लिक करता है तब क्या करना है, हमें उसका लॉजिक बनाना है. सो आइडियली ये क्या करना चाहिए, सपोज मैंने 580 डाल के कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो अभी हमारा लॉजिक चेक करना चाहिए कि हमारा कौन सा बटन सिलेक्टेड है, दैट इज अमेजिंग, गुड और ओके. सपोज गुड सिलेक्टेड है, तो हमारा 580 का जो 18% होता है वो निकाल के ये यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए, राइट? और वो भी डिस्प्ले करने से पहले चेक करना चाहिए कि ये स्विच ऑन है या ऑफ है. अगर ये स्विच ऑफ है तो एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा यहाँ पे, बट जब ये ऑन रहेगा तो इट विल शो द नियरेस्ट इंटीजर, दैट इज द होल वैल्यू हियर, राइट? सो अभी हमें उसका लॉजिक बनाना है. सो व्हाट वी विल डू इज, हमें एक वेरिएबल बनाएंगे और वो वेरिएबल में हम लोग टिप का जो परसेंटेज होने वाला है वो स्टोर कर लेंगे रेडियो ग्रुप से. ओके, सो एक नया वेरिएबल बना रहे हैं, वैल टिप परसेंट. जस्ट लेट मी चेक द चैट. Okay, if you all have any doubt or you all want me to repeat any specific part, तो chat में डाल देना please. Okay, so we have created a variable and इसमें जो टिप का परसेंटेज होने वाला है based on the user selection of the radio button, हम वो स्टोर करेंगे टिप का परसेंटेज, दैट इज 20%, 18 और 12. सो यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज, हम लोग एक व्हेन कंडीशन यूज करेंगे. एक व्हेन कंडीशन रहेगा एंड डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट व्हेन कंडीशंस हम लोग वो लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे. सो व्हेन, और व्हेन में क्या डालेंगे, हम लोग लेंगे रेडियो ग्रुप. तो व्हेन द रेडियो ग्रुप डॉट टेक्ट रेडियो बटन आईडी. सो ये क्या करेगा, व्हेन में
हमारा जो रेडियो ग्रुप है दैट इज दिस होल ग्रुप, इसमें जो भी बटन चेक्ड है उसका आईडी दे देगा वेन को। सपोज मैंने गुड पे क्लिक कर रखा है तो गुड का जो आईडी है, तो यहाँ पे आईडी क्या है गुड का, आर बटन 2 है ना इसका आईडी नेम, तो ये वैल्यू वो वेन में पास कर देगा, दैट इज दिस। तो बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द यूजर डिफरेंट कंडीशंस कैन ऑकर, राइट। तो आर डॉट आई डी डॉट आर बटन 1, एक ये कंडीशन हो सकता है कि पहला आर बटन 1 रेडियो बटन 1 सिलेक्ट हो सकता है, राइट। सो व्हेन अमेजिंग सिलेक्ट किया है तब ये कंडीशन ट्रू होगा, आर डॉट आई डी डॉट आर बटन 1। तो जब ये वैल्यू सिलेक्टेड है तो टिप परसेंट में क्या स्टोर रहना चाहिए, 20% है, राइट। सो दैट इज 0.2। सिमिलरली फॉर द सेकेंड केस आर बटन 2, जब ये सिलेक्टेड रहेगा मिडल वाला दैट इज गुड, तो वैल्यू रहना चाहिए 0.18। और एल्स, क्योंकि सिर्फ थर्ड कंडीशन है, राइट, सो एल्स में डायरेक्ट वैल्यू क्या रहेगा हमारा, 12% है तो 0.12। नाउ 20 वगैरह नहीं ले रहे हैं बिकॉज 0.2 इज द 20%, ये 20% को हमें मल्टीप्लाई करना है ना डायरेक्ट, सो 1 का 20% 0.2 होता है, राइट। सो उस बेसिस पे हम लोग ये ले रहे हैं डेसिमल वैल्यूज, बिकॉज हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सके। सो अब टिप परसेंट में क्या होगा, सो वेन एवर द यूजर हैज सिलेक्टेड अमेजिंग, तो ये जो वेरिएबल है टिप परसेंट, इट इज ऑफ टाइप डबल, राइट, तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर्ड रहेंगे। सो जब अमेजिंग सिलेक्टेड रहेगा तो इसमें वैल्यू स्टोर्ड रहेगा 0.2, जब गुड सिलेक्ट किया यूजर ने तब इसमें वैल्यू स्टोर्ड रहेगा 0.18, और जब ओके सिलेक्ट किया तब 0.12। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे where टिप, इसमें टिप का वैल्यू स्टोर्ड रहेगा। सो इसका लॉजिक क्या रहेगा, जस्ट अमाउंट जो है टोटल अमाउंट इनटू आवर टिप परसेंट, राइट। दैट इज सपोज यूजर ने क्या दिया अभी वैल्यू, सपोज यूजर 580 दिया है यूजर ने और उसने अमेजिंग सिलेक्ट किया है, तो व्हाट इट विल डू इज it will be equal to 580 into the tip percent, that is 0.2। तो अभी इसमें हमारा जो टिप का वेरिएबल है, इसमें हमारा जो आंसर है, जो एक्चुअल टिप हमें यहाँ पे शो करना है वो स्टोर हो जाएगा, राइट। बट हम लोग अभी उसको डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं कर सकते। सो हमारा अभी यूजर से इनपुट लेने वाला लॉजिक इंप्लीमेंट हो चुका है। हम लोग ने रेडियो बटन में से ये कैसे रीड कैसे करना है कि कौन सा सिलेक्टेड है वो भी अभी इम्प्लीमेंट कर लिया है यहाँ पे यूजिंग द व्हेन लूप, सॉरी द व्हेन कंडीशन। और हमने हमारा जो लॉजिक का ये था वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया। सो अभी हमारे पास टिप का वैल्यू आ चुका है, तो ये वेरिएबल में हमेशा जो टिप का वैल्यू रहेगा वो स्टोर्ड रहेगा। बट अभी हमें एक लास्ट चीज ये बची है ना, राउंड अप करने वाला पार्ट। तो हमें अभी रेडियो बटन का चेक करना है कि रेडियो बटन ट्रू ये ऑन है या ऑफ है। अगर वो ऑफ रहेगा तो जो इसमें करंट वैल्यू है वही शो करना है यूजर को, बट जब ऑफ रहेगा तब हमें इसमें राउंडेड अप वैल्यू डालनी है। बट फॉर नाउ लेट्स स्किप दिस पार्ट, बस इतना हम लोग डिस्प्ले करके चेक कर लेता। तो न्यू टिप डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू जो हमारा टेम्पलेट था रुपीज एंड आगे $sign टिप डॉट टू स्ट्रिंग। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने अभी फिलहाल के लिए स्विच वाला पार्ट इग्नोर कर दिया, पहले इतने में ही रन करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग राउंड अप वाला पार्ट करते हैं। सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने टिप कैलकुलेट कर लिया बेस्ड ऑन द यूजर्स अमाउंट एंड द रेडियो बटन सिलेक्टेड। उसके बाद हम लोग जो ये टेक्स्ट व्यू है हमारा न्यू टिप, तो न्यू टिप में हम लोग टेक्स्ट अपडेट कर रहे हैं। तो न्यू टिप डॉट टेक्स्ट टिप अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज, और फिर ये जो टिप में जो वैल्यू है सिंस टिप इज अ डबल, तो हम लोग उसको डबल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, टिप डॉट टू स्ट्रिंग। एंड इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द कॉटलिन लेसन लास्ट डे 2 का, तो ये जो $sign है ये हमारा स्ट्रिंग टेम्पलेट है, तो ये यूज होता है वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए। सो लेट्स चेक अगर कोई एरर आ रहा है कि नहीं। ओके, सो ये चेंजेस अप्लाई होके रन हो चुका है। लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग।
सो एज यू कैन सी 100 डाला एंड ओके सिलेक्ट किया तो 12 आ रहा है यहाँ पे. इफ वी सिलेक्ट 18% तो यहाँ पे 18 आ रहा है. सिमिलरली अमेजिंग के लिए 20% आ रहा है. डमी वैल्यू डाल के भी देख लेता. एज यू कैन सी बेस्ड ऑन द वैल्यूज यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू आ रहा है. बट व्हाट वी वांट इज, अभी एक लास्ट फीचर इंप्लीमेंट करना बचा है. वी वांट ये जो राउंड अप का वैल्यू है, अगर जब हम ये टिक रहा है और जब यूजर कैलकुलेट पे क्लिक करे तब जो नियरेस्ट इंटीजर है वो हम लोग शो करें. और rather than using the nearest integer we can use the next integer. तो अभी के लिए इसको कमेंट कर देता है. तो उसके लिए हमें इसको कॉल करना पड़ेगा स्विच राउंड को. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल चेक. हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो ऑप्शन है चेक्ड है या अनचेक्ड है, दैट इज इट इज ऑन और ऑफ. तो विल डू इज इफ यूज कर लेते हैं डायरेक्ट. तो इफ स्विच, ओके नाम क्या दिया है, स्विच राउंड ना. तो स्विच राउंड डॉट इज चेक्ड. तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये ऑप्शन चेक्ड है या नहीं है. ये अभी करेंटली इट इज चेक्ड एंड इट इज नॉट चेक्ड राइट हियर. सो व्हाट इट विल डू इज ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट. तो अगर सपोज अभी मैंने इसे ऑन रखा है, चेक्ड है, तो इस कंडीशन में ये इफ में ट्रू पास करेगा. तो ट्रू पास किया तो हमारा इफ कंडीशन रन करेगा, राइट. बट जब ये ऑफ पे सेट है तो ये जो इज चेक्ड है ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा. तो इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ब्रैकेट में, सो ये इफ कंडीशन रन ही नहीं करेगा उस केस में. सो नाउ यू नो ये कैसे काम कर रहा है. सो अभी अंदर का पार्ट बना लेते हैं, अभी छोटा सा ही है. सो इफ चेक्ड, अगर ये चेक्ड रहेगा तो हमें यहाँ पे राउंडेड अप वैल्यू पास करना है, राइट. राउंडेड अप वैल्यू एल्स ओरिजिनल वैल्यू. तो ओरिजिनल वैल्यू जो था हमारा वो वाला यहाँ पे पार्ट आएगा, राइट. ये ओरिजिनल वैल्यू है और यहाँ पे हमें राउंडेड अप वैल्यू का कोड लिखना है. तो हम लोग राउंड अप कैसे करें. सो इन Kotlin जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस हमें अगर डबल को राउंड अप करना है तो उसके दो ऑप्शंस रहते हैं. दैट इज अ फ्लोर एंड अ सील. सो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डबल है, ओके 2.94 समथिंग. तो ये हमारा एक डबल है. अब इसको राउंड अप करने के दो ऑप्शन रहते हैं. वन इज कॉल्ड अ फ्लोर एंड द सेकेंड ऑप्शन इज कॉल्ड एज सीलिंग, दैट इज सील. तो फ्लोर क्या करेगा, व्हेन वी यूज द फ्लोर ऑप्शन, तो फ्लोर इसको 2 को राउंड अप कर देगा. तो फ्लोर क्या करता है, जो इसका लोएस्ट वैल्यू है ना, जो मतलब लास्ट डेसिमल है, लास्ट होल नंबर, उसमें राउंड अप करेगा. और सील क्या करता है, जो नेक्स्ट होल नंबर है उस पर राउंड अप करता है. सो अगर हम लोग फ्लोर वाला फंक्शन यूज करते हैं राउंड अप करने के लिए तो वो 2 देगा आंसर और सील हमारा 3 देगा. सिमिलरली अगर कोई और नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 14.2 ले लिया, 14.2000, तो इसमें फ्लोर वैल्यू हमारा 14 देगा एंड सील फंक्शन हमारा 15 वैल्यू देगा. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सील वैल्यू यूज करेंगे टू राउंड अप टू द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, नेक्स्ट होल नंबर. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, Kotlin में इनबिल्ट ये सब लाइब्रेरीज हैं जस्ट लाइक एवरी अदर लैंग्वेज. तो हम लोग वो जो इनबिल्ट वाला हमारा फंक्शन है उससे वैल्यू चेंज कर देंगे. तो जो टिप है हमारा, टिप में हमारा टोटल अमाउंट स्टोर्ड है, राइट. टिप का जो नया वैल्यू है, तो टिप का वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे. टिप इज इक्वल टू Kotlin डॉट मैथ डॉट सील, और इसके बीच में हम लोग पास कर देंगे. ओके, सो दिस इज डन आई गेस. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे अज्यूम करो यूजर ने इनपुट डाला, ओके यही है आउटपुट. तो अभी हमारा ये जो टिप है, तो टिप में अभी वैल्यू स्टोर्ड है हमारा 1038.24. और यहाँ पे जो हमने सील किया तो अभी वैल्यू यहाँ पे चेंज होके ये हो जाएगा 1038.0.
बट हमें इंटीजर चाहिए, राइट? ये 0.0 का कुछ मतलब नहीं है अगर राउंड अप कर रहे हैं वैल्यू तो हमें बस इतना ही दिखाना है यूजर को। तो इसके लिए व्हाट वी विल डू इज हम लोग एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, दैट इज कुछ भी नाम दे दो, वैल टिप इंट। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको डबल से, अभी ये सिंस ये डबल है, राइट, तो हम लोग इसको डबल से इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वैल टिप इंट इज इक्वल टू टिप, हमारा जो टिप वेरिएबल है, डॉट टू इंट। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बस डिस्प्ले करना है। तो ये वाला कॉपी कर लेते हैं और सेम, ओके, ये सेम ही रहेगा। सो आई होप ये वाला पार्ट अभी सबको समझ में आ गया हो, राउंड अप वाला। लेट्स रन इट अगेन एंड चेक। ओके, सो अभी ये ऑफ है एंड वी आर सिलेक्टिंग 18%। सो यहाँ पे एज यू कैन सी the value is 1557.36, and when we click on roundup, okay, it is not doing that. 1 second. Okay, my bad. यहाँ पे टिप इंट यूज करना था। Okay. Now it will be fine. Okay, so when it is not rounded up, it will show 1557.36, and when we check it, it will show 1558, because we are using the seal variable, right? seal की जगह हम लोग floor भी यूज कर सकते थे, तो उस कंडीशन में क्या करता, ये हमारा 1558 की जगह 1557 शो करेगा, as you can see here. So with this, we are done with this app. Now let's see what we have the next thing. So as you can see, हमने ये वाला ऐप अभी इम्प्लीमेंट किया जस्ट। We just to recap, we took an input from the user and फिर हमने एक रेडियो ग्रुप बनाया जिसमें यूजर कैन हैव मल्टीपल रेडियो बटन्स। सो यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा उससे हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितना परसेंट ही वांट्स टू टिप, एंड अमाउंट भी उसने पहले ही डाल दिया है, तो हम लोग उसको इनपुट लेके हमारे प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल स्टोर कर लेंगे। फिर इसको एज अ वेरिएबल स्टोर किया है, फिर यहाँ से हमें परसेंटेज मिल गया, उसको एज अ वेरिएबल स्टोर किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द फाइनल अमाउंट, और फाइनल अमाउंट वी कैन शो हियर। एंड शो करने से पहले व्हाट वी कैन डू इज हम लोग ये स्विच यूज करेंगे टू चेक कि यूजर को राउंडेड अप वैल्यू चाहिए या एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए टिप का। सो अगर ये ऑफ है तो एग्जैक्ट वैल्यू दिखा देंगे, और एल्स अगर ये ऑन है तो राउंडेड अप वैल्यू दिखा देंगे। टू राउंड अप वी आर यूजिंग फ्लोर और सील। सो दिस वाज द बेसिक लेआउट ऑफ द टिप कैलकुलेटर। आई होप यहाँ तक सबको आ गया हो समझ में। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज ऐड इट इन द चैट बॉक्स, लाइक कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया हो, या इफ यू वांट me to repeat anything. Now the next thing that we have is the material UI components. So material UI components is nothing but it is a design system that was made by Google back in 2014, and since 2014 हर साल न्यू एंड्रॉयड या न्यू कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स आते हैं, तो उसके साथ एवरी ईयर द मटेरियल यूआई गेट्स अपडेटेड। सो इट इज अ डिजाइन सिस्टम, और यू कैन से बेसिक टेम्पलेट बना के दिया हुआ है टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट थिंग्स। लाइक हमें हमारे ऐप में फॉर एग्जांपल फॉर एंड्रॉयड, तो हमें हमारे ऐप में जो अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी रहती है, लाइक बॉटम नेविगेशन बार्स, या फिर जो टॉप के हमारे ऐप बार्स रहते हैं, या फिर बटन्स हो गए, बटन के डिजाइन, या फिर जो फ्लोटिंग बटन्स रहते हैं, इफ़ यू हैव सीन ऑल दिस थिंग्स। फिर डेट पिकर जो कैलेंडर्स आते हैं, फिर ये ऐसे वाले जो आते हैं, फिर चेक बॉक्सेस, फिर हमारा डायलॉग बॉक्सेस जो आता है। तो ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इन्होंने पहले से टेम्पलेट बना के दिया हुआ है, विच इज़ वेरी मच अपीलिंग, एंड जो एक मटेरियल डिज़ाइन रहता है, मतलब इसका यूआई बहुत ये रहता है। पहले से इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, और व्हाट वी कैन डू इज हम लोग इधर का ही कोड कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, क्योंकि एज यू कैन सी अभी ऐप बहुत ज़्यादा ही बेसिक है, हमने यहाँ पे कुछ भी यूआई में डिज़ाइन चेंजेस नहीं किए हैं, तो व्हाट वी विल डू इज हम लोग इसमें थोड़े बहुत यूआई चेंजेस करते हैं टू मेक इट लुक अ लिटिल बिट बेटर देन व्हाट इट इज लुकिंग राइट नाउ। तो व्हाट विल डू इज, ये जो लेफ्ट साइड में हमारा ऐप है अभी करेंटली ऐसा दिख रहा है, वी विल जस्ट चेंज द यूआई डिजाइन टू अ मोर मटेरियल डिजाइन, एंड वी विल मेक द चेंजेस। एंड ये जो राइट साइड वाला डिजाइन है, अब आफ्टर द चेंजेस ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट।
तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज, ओके, सो इफ यू आर यूजिंग डायरेक्टली यहाँ से, तो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ से यू कैन सर्च फॉर एवरीथिंग, लाइक यू वांट टू यूज टेक्स्ट फील्ड्स, राइट? तो टेक्स्ट फील्ड में जाके यू कैन सी हियर, यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कैसा डिजाइन रहेगा। सो वी कैन इधर यूज ये लेबल ये वाला, या फिर हम लोग ये आउटलाइन वाला यूज कर सकते हैं। सो पर्सनली मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज गो टू इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे ओएस हमने ऑलरेडी एंड्रॉइड सेलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे वो लोग ने लेआउट वाले कोड्स, एक्सएमएल के कोड्स दे रखे हैं सबके। सो हमें आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड चाहिए, राइट, ऐसा वाला। तो यहाँ पे जाके व्हाट आई विल डू इज इसका ये कॉपी कर लूंगा पूरा पार्ट, एंड हमारा जो सबसे पहला वाला एडिट टेक्स्ट है, इसकी जगह वी विल रिप्लेस इट। एंड सारे एरर्स रिजॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो इसको हमें आईडी देना होगा, पुराना वाला जो था हमारा एडिट टेक्स्ट का टिप वैल्यू, राइट? इसको आईडी दे दिया टिप वैल्यू, और ये जो बाहर वाला लेआउट है इसको भी एक आईडी देना होगा। ओके, पहले से यहाँ पे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, तो जो नीचे वाला एरर आ रहा है यहाँ पे हम रिलेशन चेंज कर देंगे, और यहाँ पे जो हिंट है, हमारा हिंट क्या आता था ऐप में, देख सकें। ओके, सो हमारा जो एडिट टेक्स्ट रहता है ना, एडिट टेक्स्ट में यूजर का कोई वैल्यू एंटर करने से पहले से जो टेक्स्ट दिखाता है ना, उसको हिंट बोलते हैं। तो वी कैन सेट एनीथिंग दैट वी वांट। इससे क्या होता है, यूजर कैन गेट एन आइडिया कि इस टेक्स्ट फील्ड में, इस एडिट टेक्स्ट फील्ड में हमें कौन सा वैल्यू इनपुट करना है, क्या इनपुट करना है। सो हिंट हमारा क्या था, टोटल अमाउंट। ओके, एंड अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ऑल्ट एंटर दबाते हैं, एंड इट इज मिसिंग कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो हमने कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे सेट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाला कंस्ट्रेंट सेट कर देता है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, सारे कंस्ट्रेंट सेट कर दिए हमने। नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसको मार्जिन दे देते हैं चारों साइड का 10 dp लेट से। नाउ इट इज लुकिंग बेटर, और इसका विड्थ अभी मैच पेरेंट है। तो व्हाट मैच पेरेंट डज इज कि इसका ये वाला जो हमारा व्यू है, इसका जो पेरेंट व्यू रहेगा ना, लाइक फॉर एग्जांपल इन आवर केस इसका पेरेंट व्यू है कंस्ट्रेंट लेआउट, तो जो कंस्ट्रेंट लेआउट का विड्थ रहेगा ना, ये उसको मैच कर लेगा, मतलब उतना ही होगा। तो इसका भी मैच पेरेंट है। तो व्हाट दिस मीन्स इज कि हमारा पूरा स्क्रीन इसका विड्थ हो जाएगा, जितना भी हमारे स्क्रीन का साइज रहेगा। तो दैट्स वाई हमारा जो चाइल्ड है इसका भी विड्थ फुल है, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके वी विल कीप इट समथिंग स्मॉल लाइक 200 dp। इतना साइज काफी है, बट हम लोग को ये थोड़ा राइट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट? इसको ड्रैग करके इधर ले लेता हूँ, समवेयर हियर। बस हमें टॉप का मार्जिन थोड़ा ज्यादा चाहिए। दिस इज लुकिंग बेटर। ओके, सो हमने क्या किया, हमारा जो एडिट टेक्स्ट था उसको मटेरियल टेक्स्ट इनपुट लेआउट से चेंज कर दिया। तो मटेरियल एडिट टेक्स्ट को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसके लिए एक उसका पेरेंट क्लास भी चाहिए, दैट इज टेक्स्ट इनपुट लेआउट। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमें कॉपी पेस्ट करना रहता है। तो मटेरियल वाला कुछ भी इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग ना, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाके कॉपी कर सकते हैं वाला पार्ट। तो अभी हमारा ये टेक्स्ट का ये हो गया है। इफ यू वांट टू सी वी कैन जस्ट, ओके, I'll just close and start again. So as you can see, हमारा जो hint है, by default हमारा hint बीच में दिखेगा, and as you can see the design is also better than before, and when the user clicks it, hint गायब नहीं हो जाएगा, it will just go up. So still user can see कि यहाँ पे क्या वैल्यू डालना है उसको। So अभी similarly हम लोग बाकी चीज़ों के लिए भी सेट कर देते हैं। रेडियो बटन्स के लिए there is not a specific material design for radio groups and radio buttons. तो रेडियो बटन्स जो मतलब बाय डिफॉल्ट आता है, ये यही हमें यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इफ यू डोंट वांट टू गो हियर, लाइक आई विल जस्ट सजेस्ट कि यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है ना, एडिट टेक्स्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए ही यहाँ से यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड, बट बाकी मटेरियल ये व्यूज के लिए आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। लाइक ये पहले से हमारा क्या था, टेक्स्ट व्यू था, राइट? तो इसको मटेरियल टेक्स्ट व्यू में चेंज करना है, तो वी कैन जस्ट टाइप मटेरियल, यहाँ पे आ गया मटेरियल टेक्स्ट व्यू। तो हमने उसमें चेंज कर दिया, एंड इसका बस हमें ये चेंज करना है पोजीशन।
ओके, एंड इसका टॉप का जो मार्जिन है उसको बढ़ा देते हैं. तो नाउ इट इज लुकिंग बेटर. सिमिलरली जो हमारा रेडियो ग्रुप है इसको भी हम लोग पोजीशन कर देते हैं यहाँ पे. हियर इट इज फाइन. एंड अभी ये जो राउंडेड अप वाला पार्ट है, ओके, तो हमारे जो स्विच है, स्विच मटेरियल में अवेलेबल है. तो मटेरियल क्या, लेट्स टाइप दिस स्विच. स्विच टाइप किया तो एज यू कैन सी यहाँ पे पहले तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं, स्विच एंड स्विच कम्पैक्ट एंड थर्ड वन है स्विच मटेरियल. तो हमें मटेरियल स्विच चाहिए, तो वी हैव चेंज्ड इट. एंड ज़्यादा चेंजेस नहीं है वैसे, बस ये थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है. तो ये डाल दिया हमने. एंड टेक्स्ट का साइज थोड़ा देखते हैं बढ़ा के. तो ये ठीक है. एंड आफ्टर दैट हमारा जो कैलकुलेट का बटन है, बटन में भी मटेरियल है. तो लेट्स यूज द मटेरियल बटन. एंड इसमें अगेन टेक्स्ट व्यू को हम लोग चेंज करके मटेरियल टेक्स्ट व्यू कर देंगे. सो टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह बस थोड़ा चेंज हुआ मटेरियल वाला. लेट्स रिलोड इट एंड चेक कि डिज़ाइन कितना चेंज हुआ. एंड अभी भी हमें थोड़े चेंजेस और करने हैं. ओके, सो एज यू कैन सी थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज हो चुका है पहले से. फर्स्ट दिस मटेरियल, ये वाला बॉक्स. ओके, सो एज यू कैन सी अभी डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड आ गया है, तो ये भी हमें वापस ठीक करना पड़ेगा. इनपुट टाइप नंबर, रन अगेन. हमें बस अभी आइकन्स डालने हैं, राइट. ये जो छोटे छोटे अलग अलग आइकन्स आते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि ये सेम डिज़ाइन पैटर्न बहुत सारे ऐप्स में फॉलो होता है. एक आइकन रहता है, उसके बाद उसका टेक्स्ट फील्ड या एडिट टेक्स्ट या टेक्स्ट फील्ड जो भी रहेगा वो रहता है, ऐसा वाला ही मटेरियल डिज़ाइन का. एंड दिस इज द डिज़ाइन पैटर्न अ लॉट ऑफ एप्स फॉलो एज वेल. सो अभी हम लोग सिमिलर चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ ये आइकन्स एंड ऑल डालने का ट्राई करते हैं. सो हाउ कैन वी डू दैट. सो पहले ये चेक कर लेते हैं. ओके, सो अभी नंबर कीबोर्ड आ रहा है. एंड ओके, ओके, ऑल्सो वन थिंग, अभी हम लोगों ने ये चेंज किया, राइट. यहाँ पे हमारा एडिट टेक्स्ट था, एंड एडिट टेक्स्ट की जगह हमने क्या किया, टेक्स्ट इनपुट लेआउट यूज किया है अभी, राइट. और यहाँ टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट. सिमिलरली हमारा जो स्विच था, तो स्विच की जगह हम लोग ने स्विच मटेरियल यूज किया है अभी, और बटन की जगह हम लोग ने मटेरियल बटन यूज किया है, राइट. तो अभी हमें थोड़ी बहुत चीजें यहाँ अपने कोड में भी चेंज करनी पड़ेगी. एंड ये जो टेक्स्ट व्यू था हमारा मटेरियल टेक्स्ट व्यू है अभी, तो ये सब हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हुक्स के जगह पे, जहाँ पे हमने हुक्स बनाया था. तो इसका टाइप हमने एडिट टेक्स्ट रखा था, तो अभी उसे चेंज करके इसका नाम क्या था, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट. ओके, तो इसका टाइप यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट. सिमिलरली रेडियो ग्रुप का तो सेम है, स्विच का चेंज करना पड़ेगा. व्हाट इज द टाइप ऑफ द न्यू स्विच, इट इज द स्विच मटेरियल. ओके, तो स्विच मटेरियल यूज करेंगे यहाँ पे. एंड सिमिलरली ये टेक्स्ट व्यू की जगह हमने क्या यूज किया यहाँ पे, मटेरियल टेक्स्ट व्यू. सो इट विल बी अ मटेरियल टेक्स्ट व्यू. ओके, सो क्योंकि अभी एज यू कैन सी अभी हम लोग ये कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे कुछ भी वैल्यू डाल के, तो ऐप विल क्रैश, बिकॉज हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एडिट टेक्स्ट वगैरह रखा था, बट वो जब चेक करने जाएगा तो उसको यहाँ पे एडिट टेक्स्ट मिलेगा ही नहीं कोई. सो प्रोग्रामेटिकली एज यू कैन सी यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली एरर नहीं था, बट लॉजिक में पूरा एरर है. तो ये जो यहाँ पे ये आएगा तो वो क्रैश कर जाएगा, बिकॉज हमारा कंपाइलर कांट फाइंड दिस इशू, राइट. तो इसलिए अभी ये चेंज कर दिया है, सो अभी ये ठीक हो जाएगा. लेट्स रन इट अगेन.
एंड एज यू कैन सी अभी ये पहले जैसा काम करेगा, लाइक व्हाट वी मेड फर्स्ट. ओके, नाइस. सो अभी जो एक लास्ट पार्ट बचा है आइकन्स डालने का, सो आई विल जस्ट ऐड एन आइकन फॉर वन पार्ट एंड द लास्ट 2 पार्ट यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ. ओके, बिकॉज अभी आफ्टर दिस और थोड़ा सा टॉपिक कवर करना है, सो दैट्स व्हाई बस एक आइकन में डाल के दिखाता हूँ एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट यू ऑल कैन ट्राई बाय योरसेल्फ. सो सबसे पहले आई विल शो कि आइकन ऐड कैसे करते हैं हमें. तो हमें ऐसा टाइप का आइकन चाहिए, राइट? तो पहले हमें हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा. तो जितने भी इमेज फाइल्स रहते हैं वो रेस में ड्रॉएबल में हम लोग स्टोर करते हैं. तो ड्रॉएबल फोल्डर पे राइट क्लिक करो, गो टू न्यू एंड वेक्टर एसेट. तो वेक्टर एसेट्स इज समथिंग दैट वी यूज जनरली जब हमें अपने ऐप में कोई ऐसा जो कॉमनली अवेलेबल आइकन्स वगैरह होते हैं वो यूज करने रहता है, तो हम लोग वेक्टर एसेट्स यूज करते हैं. गो टू वेक्टर एसेट, यहाँ क्लिप आर्ट में से सिलेक्ट कर लो कि जो भी दिखाना है. So for the total amount, we can use something like money related, like this. We can select the color that we want. So I'll just use color picker 6200EE. 6200EE. Okay, this color looks good. So ऐसा टाइप का आइकन आएगा. So let's click on next. एंड इट इज शोइंग कि ये कहाँ पे सेव होगा. इट विल बी सेव्ड इन मेन ड्रॉएबल के फोल्डर में और ये नाम रहेगा उसका. सो हम लोग डिफॉल्ट नाम ही रहने देते हैं. सो एज यू कैन सी एक नया XML फाइल बन गया है. सो इसमें हमारा आइकन आ चुका है. तो हम लोग ये यूज़ करेंगे हमारा इमेज दिखाने के लिए. तो हमें इमेज कहाँ दिखाना है, इसके लेफ्ट में दिखाना है, राइट? तो ये जो पूरा टेक्स्ट इनपुट लेआउट है हमारा, इसको हम लोग एक ग्रिड लेआउट के अंदर डाल देंगे. सो अभी के लिए इसको कट कर लेता एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू ग्रिड लेआउट. रैप कंटेंट और आई गेस इसका वेट शुड बी मैच पेरेंट सो दैट फुल ये फिल करे. और लेट्स गिव इट अ नेम. So ID will be grid 1 and inside this grid layout हमारा जो टेक्स्ट का बटन है वो ऐड करना है. इसका नाम कॉपी करते हैं और नीचे वाले एलिमेंट को उसके नीचे डालते हैं. तो नाउ अभी ठीक दिख रहा है. वी नीड टू मेक अ फ्यू चेंजेस लाइक ये ग्रिड लेआउट को सबसे पहले तो हमें कंस्ट्रेंट्स ऐड करना है. ओके, सो कंस्ट्रेंट्स का एरर गया. नाउ हम लोग जो ग्रिड लेआउट रहता है दिस इज समथिंग लाइक दिस. तो हमारा इंस्टाग्राम का फीड रहता है ना होम पेज, तो वो सब रहता है ग्रिड लेआउट में लाइक दिस. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. ऐसे टाइप के जितने रहते हैं दीज थिंग्स आर ग्रिड लेआउट्स. सो हम लोग इसमें रोज एंड कॉलम्स में एलिमेंट्स ऐड करते हैं, राइट? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में. तो हमें कैसा चाहिए, हमें इसके लेफ्ट साइड में आइकन चाहिए, राइट? तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2 कॉलम्स हो गए. लाइक लेट्स सी हियर, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया. नंबर ऑफ रोज हमारा 1 है, राइट? यहाँ पे तो हम लोग वो ग्रिड लेआउट में सेट कर देंगे. रो काउंट 1 एंड द कॉलम काउंट इज 2 क्योंकि एक के साइड में 1-2 एलिमेंट चाहिए हमें. और इसका ओरिएंटेशन हम लोग सेट कर देंगे हॉरिजॉन्टल क्योंकि लेफ्ट और राइट में एलिमेंट्स रहेंगे, राइट? तो अभी हमें सबसे पहले ये चाहिए क्या बोलते हैं, आइकन चाहिए, राइट? और उसके बाद हमारा ये एडिट टेक्स्ट आना चाहिए. तो एडिट टेक्स्ट के पहले हम लोग ग्रिड लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू बना देंगे. तो वी विल ऐड एन इमेज व्यू एंड इमेज व्यू का हम लोग विड्थ सेट कर देंगे, दैट इज रैप कंटेंट. एंड हाइट भी रहेगा इसका रैप कंटेंट. ओके, सो फॉर एवरी व्यू एलिमेंट दैट वी ऐड हमें 2 चीज कंपल्सरीली ऐड करनी रहती है, दैट इज द लेआउट हाइट एंड लेआउट विड्थ. तो हम लोग ने ये तो ऐड कर दिया. तो थर्ड थिंग इज द सोर्स ऑफ द इमेज, दैट इज द इमेज फाइल. तो ये IC बेसलाइन अटैच मनी ही था हमारा आइकन. तो वी हैव एडेड दैट आइकन हियर. सो अभी आइकन तो ऐड हो गया है. अभी एज यू कैन सी वो उधर कोने में जा रहा है. तो वी वांट इट इन द सेंटर, राइट? तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड ग्रेविटी.
तो लेआउट का ग्रेविटी सेंटर, व्हाट इट विल डू इज ये यहाँ पे साइड में आ गया। अभी एज यू कैन सी ये थोड़ा ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो व्हाट वी विल डू इज इसका मार्जिन हम लोग ठीक कर लेंगे। इसका जो मार्जिन है ये हटा देते हैं, एंड जो टेक्स्ट इनपुट लेआउट है इसमें और भी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल बायस, just give me 1 second. Hence total amount, horizontal bias. Let's remove the bias here. Style width is here. Okay, number of rows I गलत डाल दिया था। One column count is 2. Margin top we don't need. These things also we don't need. Layout gravity left. Okay, अभी ठीक है। नाउ ये ग्रिड लेआउट बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हम इसको मार्जिन देके थोड़ा नीचे ले लेते हैं। तो मार्जिन टॉप विल बी समथिंग लेट्स से 30 dp. लेट्स कीप इट 20 एंड मार्जिन स्टार्ट डाल देते हैं हम लोग। तो लेफ्ट साइड से मार्जिन आ जाएगा, दैट इज 10 dp. दिस इज गुड। नाउ सिमिलरली इसको भी वी कैन पुट इट समवेयर हियर, एंड ये वाला जो ग्रुप है इसको भी थोड़ा इधर सेट कर देता। दिस लुक्स गुड। एंड इसका हम लोग मार्जिन स्टार्ट सेट कर रख देते हैं 10 dp, तो थोड़ा राइट साइड में आएगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू ऐड आइकन्स टू योर ऐप। तो सबसे पहले तो एक सेकेंड, लेट्स रन इट एंड सी। ओके, सो नाउ यू कैन सी एक आइकन यहाँ पे आ गया है। सो हाउ डिड वी ऐड दिस वाज, सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉएबल फोल्डर में गए विच इज अंडर द रेस्ट फोल्डर। तो रिसोर्सेस में ड्रॉएबल, और हमारे जो भी इमेज फाइल्स रहते हैं ना, तो वो सारे ड्रॉएबल में हम लोग डालते हैं। तो इसमें गो टू न्यू, एंड न्यू में जाके ऐड अ वेक्टर एसेट। ओके, तो वेक्टर एसेट पे क्लिक करो, यहाँ से जो भी डिफॉल्ट आइकन यूज करना है वो सिलेक्ट कर लो। यू कैन सर्च ऑल्सो, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आइकन्स, अलग अलग कैटेगरीज के, वो आइकन सिलेक्ट कर लो, सेट योर कलर, और उसके बाद नेक्स्ट करो, और फिर यहाँ पे दिखाएगा कि कौन से फोल्डर पे सेव हो रहा है विथ व्हाट नेम। फिर व्हेन यू क्लिक फिनिश तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इट इज़ एन एक्सएमएल फाइल, दैट इज़ अ वेक्टर एसेट। और इसके बाद व्हाट यू कैन डू इज एक इमेज व्यू बना लो, और उसमें जो सोर्स रहता है, सोर्स में बस उसका नाम टाइप कर दो, दैट इज इट वाज मनी समथिंग, राइट। तो अपने आप ही आ जाएगा @drawable और फिर पूरा नाम। तो वो हम लोग ने डाल दिया है। देन हम लोग ने ग्रेविटी इसका सेंटर एंड लेफ्ट सेट किया है। तो ये जो बीच में जो स्ट्रेट लाइन है ना, जो हम लोग डबल यूज करते हैं फॉर यूजिंग और ऑपरेशन एंड ऑल ये कोड, तो ये जो स्ट्रेट लाइन काम करता है, इट एक्ट्स एज एंड हियर। तो हम लोग जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी को सेंटर एंड लेफ्ट रख रहे हैं। तो व्हाट इट विल डू इज
ये जो हमारा आइकन है वो सेंटर में रहेगा हमारे पूरे पेरेंट के। हमारा पेरेंट क्या है, ग्रिड व्यू है राइट, ये जो आउटलाइन है यहाँ पे। 1 सेकेंड। तो हमारा जो आइकन है वो पेरेंट के सेंटर में रहेगा और एकदम लेफ्ट साइड में रहेगा, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेंटर लेफ्ट हियर। और उसके बाद सिमिलरली मैंने इधर इसका भी ग्रेविटी लेफ्ट में रखा है, बिकॉज अगर ये नहीं रखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी हियर राइट, एकदम राइट साइड में चिपक के रह रहा है। दैट्स व्हाई मैं ग्रेविटी लेफ्ट में सेट कर रहा हूँ, सो दैट जो बाजू वाला एलिमेंट है उसके जस्ट बाजू में आ जाए। एंड ये जो बीच में इतना गैप दिख रहा है ना, ये दिस गैप इज बिकॉज मैंने ये जो है हमारा टेक्स्ट फील्ड, उसमें मैंने एक मार्जिन स्टार्ट सेट किया 10 डीपी का, सो दैट नेक्स्ट एलिमेंट के बाद 10 डीपी का स्पेस देके फिर आए। एंड बाकी सब तो वही सेम है। तो सिमिलरली हमें बाकी जगह पे भी आपको आइकन डालना है तो यू कैन ऐड इट लाइक दैट ओनली। जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने ये दो का भी आइकन डाला है राइट। तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया, आइकन हम लोग डायरेक्टली कंस्ट्रेंट लेआउट में नहीं डाल रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इजी वे यही है, एक ग्रिड लेआउट बना लो हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ही। वो ग्रिड लेआउट के अंदर अपना इमेज और अपना जो आइकन है वो ये सॉरी टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे डाल लो। तो ग्रिड लेआउट में सबसे ग्रिड में रहता है राइट, इन रोज एंड कॉलम्स। तो हमने क्या किया है, रो काउंट 1 रख दिया क्योंकि एक ही रो है राइट, एंड कॉलम काउंट 2 कर दिया क्योंकि हमें 2 कॉलम चाहिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट डालने हैं। और फिर हमने ग्रिड लेआउट के अंदर ही इमेज व्यू एक डाल दिया एंड एक टेक्स्ट वाला डाल दिया मटेरियल का। ये हमारा एडिट टेक्स्ट का काम कर रहा है पूरा राइट। तो ये 2 एलिमेंट डाल दिए, उसके बाद हमारा एक मटेरियल टेक्स्ट व्यू है। तो अगर ये इसके आगे भी हमें आइकन डालना है जैसे यहाँ पे इन्होंने डाला है, तो सिमिलरली क्या करो, इसको कट करो यहाँ से एंड एक ग्रिड लेआउट बनाओ। और गिव मी 1 सेकंड। ओके, सो इधर भी ये सेम ग्रिड लेआउट बनाओ और ये ग्रिड लेआउट के अंदर यू कैन ऐड अ न्यू इमेज एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा मटेरियल टेक्स्ट व्यू। सो जो भी इमेज तुम्हें ऐड करना है जस्ट गो टू ड्रॉएबल, अगेन न्यू वेक्टर एसेट, यहाँ से जो भी उससे रिलेटेबल इमेज चाहिए सिलेक्ट दैट इमेज एंड वो पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करो। सिमिलरली यहाँ पे भी स्विच के आगे भी डालना है तो वो ग्रिड लेआउट एक बना दो, ग्रिड लेआउट के अंदर सेट कर दो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 एंड नंबर ऑफ रोज 1 और एक इमेज व्यू डाल दो इसके आगे बस इसके पहले, तो ऐसे वहाँ पे इमेज आ जाएगा। तो वंस यू आर डन तो उसका कोड मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। सो जब आपका वो हो जाएगा तो एंड रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस, एज यू कैन सी राइट हियर। तो सबसे पहले एक आइकन है, फिर ये नीचे भी मैंने वही किया, ग्रिड लेआउट लिया, उसके अंदर एक इमेज व्यू डाला ये आइकन का, एंड फिर एक मटेरियल टेक्स्ट व्यू हमारा। सिमिलरली स्विच में भी वही किया है, एक ग्रिड लेआउट लिया, ग्रिड लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू है और फिर हमारा जो स्विच है यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग ना अलग अलग एक के अंदर एक ऐसे व्यूज डाल सकते हैं। तो ये जो लेआउट्स है जैसे ग्रिड लेआउट हो गया या बाहर वाला कंस्ट्रेंट लेआउट हो गया, तो इसको हम लोग इफ यू रिमेंबर इसको हम लोग बोलते हैं हमारा व्यू ग्रुप्स, बिकॉज इसके अंदर हम लोग मल्टीपल व्यूज रख सकते हैं। जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम लोग ने एक और लेआउट रख लिया ग्रिड लेआउट, और वो ग्रिड लेआउट के अंदर फिर बहुत सारे 2 व्यूज 3 व्यूज डाल रखे हैं। फिर एक दूसरा ग्रिड लेआउट बनाया उसके अंदर भी 2 व्यूज हैं, और फिर एक रेडियो ग्रुप बनाया, तो रेडियो ग्रुप भी ग्रुप है, व्यू ग्रुप है राइट, तो उसके अंदर 3 अलग अलग व्यूज डाल रखे हैं हम लोगों ने। तो ऐसे ही यूआई में एक के अंदर एक ऐसे बहुत सारे पेरेंट और चाइल्ड के ये व्यूज हम लोग डाल सकते हैं। तो ये एंड रिजल्ट रहेगा एंड लेट्स रन इट एंड सी। By the time it runs, let me check if anyone has any questions. Okay. So this is the final result, जो सेम यहाँ पे ये दे रखा है एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये सेम टाइप का आता है हमारा। यहाँ पे यूजर विल एंटर एनी वैल्यू एंड एक ये सिलेक्ट करेगा जितना भी परसेंटेज चाहिए एंड राउंड अप करना है यानी, एंड देन ही कैन कैलकुलेट द अमाउंट। So this was the end result. Now with this we are done with the tip calculator app. Also, if you all want to check the code, like
अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है, मैंने जो यहाँ पे कोड किया है फॉर दिस ऐप एज वेल एज द डाइस रोलर ऐप, तो हमारे गिटहब पे से जाके जो हमारा सोर्स कोड है यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड अपने इसमें चला के यू कैन चेक, या फिर कोड चेक करना है तो कोड चेक कर सकते हो। जस्ट गो टू आवर लिंक ट्री, यहाँ से गिटहब पे चले जाओ एंड गिटहब पे 2 पिन रिपोजिटरीज हैं, एक है हमारा टिप कैलकुलेटर का एंड एक है डाइस रोलर का। तो दोनों का जो सोर्स कोड है जो हमने बनाया था, ये डे 2 पे जो बनाया था हम लोगों ने डाइस रोलर, उसका कोड है पूरा। तो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ से बस कोड पे जाओ एंड डाउनलोड द जिप। तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, तो फिर ये ऐसा ही फोल्डर्स पूरे आने लगेंगे। तो फिर इसको बस एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाके ओपन पे क्लिक करो और वो जो फोल्डर है ना उसको ओपन कर लो, तो वो पूरा जो कोड मैंने किया है ना वो आपके इसमें भी खुल जाएगा। तो सेम फॉर डाइस रोलर और टिप कैलकुलेटर एज वेल। तो आज वाला जो अभी हमने ये कोड कंप्लीट किया ना, ये वाला, ये सेम कोड आपको डाउनलोड करके अपने इसमें रन करके चेक करना है या फिर कोड चेक करना है ना, तो जस्ट यहाँ पे जाओ, टिप कैलकुलेटर मिल जाएगा ये गूगल DSC केस पे। तो टिप कैलकुलेटर पे जाओ एंड जस्ट डाउनलोड द जिप फाइल। और अगर सिर्फ कुछ कोड देखना है तो उस फोल्डर में जा सकते हो, जैसे ऐप सोर्स मेन में। एंड अगर XML फाइल देखना है तो इसमें रेस्ट में जाके लेआउट में जाओ, तो यहाँ पे वो अभी जो हम लोग ने ये किया ना, ये वाला जो है एक्टिविटी मेन डॉट XML, तो ये वाला फाइल देखना है तो यहीं पे देख सकते हो गिटहब पे। और सिमिलरली अगर ये वाला देखना है कॉटलिन वाला, तो यहाँ से मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन पे पूरा कोड मिल जाएगा। इफ़ यू ऑल वांट टू रेफर दिस, तो डायरेक्टली वही लिंक ट्री से यू कैन गो टू आवर गिटहब एंड डाउनलोड करके यू कैन रन एंड चेक। सो विद दिस यूनिट 1 और 2 तो कंप्लीट, पाथवे 1 और 2 तो कंप्लीट हो गया हमारे कोर्स का। जस्ट अभी थोड़ा सा पार्ट बचा। तो यूनिट 2 का जो ये था पाथवे 1 एंड पाथवे 2, ये कंप्लीट हो गया इसके साथ। तो इसमें ही हम लोगों ने ये कंप्लीट किया था टिप कैलकुलेटर ऐप। पहले वाले में हम लोग ने बस लॉजिक बनाया था कॉटलिन का, एंड सेकेंड वाले में हम लोग दोनों डिज़ाइन बनाते हैं, एक तो हमारा ये पुराना वाला डिज़ाइन एंड फिर ये नया मटेरियल यूआई वाला डिज़ाइन। तो इसके साथ साथ थोड़े बहुत क्लासेस एंड इनहेरिटेंस के भी टॉपिक्स कवर किए हैं, तो वो ट्राइड बाय योरसेल्फ, क्योंकि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, वो कॉटलिन से रिलेटेड है। तो इसके बाद जो थर्ड पाथवे है, दिस इज टू डिस्प्ले स्क्रॉलेबल लिस्ट। तो जो हमारा स्क्रॉल व्यू रहता है ना, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। लाइक आई डोंट थिंक इसमें ज़रूरत पड़ेगी, बट लेट्स सी। ओके, नहीं पड़ेगी। तो अगर हमारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं ना जो स्क्रीन के बाहर जाते हैं, तो उस केस में हम लोग स्क्रॉल व्यूज यूज़ करते हैं। और स्क्रॉल व्यू भी बहुत ऐसे कम केसेस में, जैसे अभी हमारा ये केस हो गया, तो इसमें मैंने स्क्रॉल व्यू यूज़ किया है, क्योंकि अगर किसी का स्क्रीन साइज छोटा है और एलिमेंट स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं, तो उस केस में स्क्रॉल करके वो यूज़ कर सकता है। तो ऐसे केस में जो डिफॉल्ट ऐसा बेसिक केस है ना, इसमें वी कैन यूज स्क्रॉल व्यू। सो दिस वाज लाइक स्क्रॉल व्यू। तो स्क्रॉल व्यू में क्या होता है, नथिंग बट हमें अगर कोई एक लिस्ट ऑफ डेटा दिखाना है ना, तो उस केस में हम लोग स्क्रॉल व्यू यूज कर सकते हैं, जिसमें मतलब यूजर्स कैन स्क्रॉल। तो जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने दिखाया, तो स्क्रॉल व्यू तब यूज करते हैं जब डेटा स्टैटिक होता है, मतलब जो डेटा ऐसा यूजर की यूज करते करते चेंज नहीं होगा बिल्कुल। तो वैसे टाइप का डेटा हमारा स्क्रॉल व्यू में यूज करते हैं, तो इसका यूज केस बहुत कम रहता है। जो डिफॉल्ट स्क्रॉल व्यू है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो जो ये डिफॉल्ट स्क्रॉल व्यू है ना, इसका यूज केस बहुत कम है, बहुत कम जगह हम लोग ऐसा यूज करेंगे। एक स्क्रॉल व्यू का कॉम्प्लेक्स वर्जन है, दैट इज कॉल्ड एज रिसाइकलर व्यू। सो दिस इज समथिंग जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। एंड ऑल द एंड्रॉयड ऐप्स, लाइक ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े एंड्रॉयड ऐप्स हैं, हर ऐप में आपको रिसाइकलर व्यू मिलेगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो आपको शायद ही कोई ऐसा ऐप रहेगा, कोई भी बड़ा या मेजर ऐप जिसमें रिसाइकलर व्यू यूज नहीं हुआ होगा। तो रिसाइकलर व्यू क्या रहता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्रॉल व्यू। तो व्हाट रिसाइकलर व्यू इज लाइक, एक हमारे ये लेफ्ट साइड वाला नॉर्मल स्क्रॉल व्यू है। तो इसमें क्या रहता है ना, जो हमारे एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग, सारा डेटा पहले से ही एक ही बार में लोड हो जाता है। सपोज हमारा कॉन्टैक्ट्स का ऐप है, आपके फोन में 200 या सपोज 300 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो लिस्ट व्यू हमारे जो अगर नॉर्मल स्क्रॉल व्यू यूज किया, अगर जिसने कॉन्टैक्ट्स का ऐप बनाया उसने,
तो क्या करेगा स्क्रॉल व्यू में, वो सारे के सारे 300 कॉन्टैक्ट्स का डेटा एक ही बार में लोड कर लेगा, और आप जब स्क्रॉल करोगे ना तो सारा का सारा डेटा पहले से लोडेड रहेगा 300 के 300। और रिसाइकलर व्यू क्या करता है, रिसाइकलर व्यू जितने एलिमेंट स्क्रीन पे दिखेंगे ना उतने ही लोड करेगा, प्लस ऊपर के 2 एक्स्ट्रा और नीचे के 2-3 एक्स्ट्रा। तो ये रिसाइकलर व्यू का डिफरेंस रहता है। फिर जैसे आप स्क्रॉल करोगे, सपोज यू आर स्क्रॉलिंग अप, तो एक यहाँ से 2 एलिमेंट जैसे स्क्रीन के बाहर चले गए ना, तो एक एलिमेंट उधर से डिलीट कर देगा ऊपर से, और नीचे फिर एक नया एलिमेंट ऐड करेगा। तो व्हाट रिसाइकलर व्यू डज इज, फॉर एग्जांपल ये कैसे यूजफुल होगा यू आर आस्किंग, तो लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, तो इफ यू हैव नोटिस्ड इंस्टाग्राम का जो हमारा फीड रहता है इट इज अनलिमिटेड, राइट, कितना भी वी कैन स्क्रॉल। सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू मेक यूजिंग स्क्रॉल व्यू, राइट, क्योंकि स्क्रॉल व्यू में डेटा हमारा स्टैटिक रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज वगैरह हो रहा है, तो बहुत इश्यू आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से व्हाट्सएप के चैट मैसेजेस हैं, तो व्हाट्सएप पे हमारे कैसे जो ग्रुप्स रहते हैं उसमें 10,000 20,000 के ऊपर भी मैसेजेस जाते हैं, राइट। तो उस केस में इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज स्क्रॉल व्यू करके, कि जब भी आप वो चैट खोलोगे तो आपके फोन को एक ही बार में 30,000 40,000 मैसेजेस लोड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए बहुत ज्यादा रैम लगेगा, और आपका ऐप भी क्रैश होते रहेगा और हैंग होते रहेगा। तो इसलिए स्क्रॉल व्यू यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि मोस्टली वैसे ही सिचुएशन रहता है, राइट, बहुत ज्यादा डेटा रहता है। लाइक व्हाट्सएप के चैट्स का मेन्यू हो गया आपका, या इंस्टाग्राम का जो स्क्रॉल रहता है हमारा होम पेज वगैरह, या बाकी जितने भी ऐप्स रहते हैं हमारा डिस्कॉर्ड रेडिट वगैरह सब पे, यूट्यूब भी हो गया हमारा, जोमेटो स्विगी, हर चीज में। तो हर जगह रिसाइकलर व्यू यूज होता है, क्योंकि रिसाइकलर व्यू क्या करेगा, सपोज हमारे ये फोटोज लोड हो रहे थे, एक बार में सपोज 2 फोटोज दिखते हैं या 3 फोटोज, तो रिसाइकलर व्यू मैक्स टू मैक्स 5 या 6 फोटोज लोड करके रखेगा, 2-3 ऊपर के 2-3 नीचे के, और जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं उतना डेटा। फिर एज यू स्क्रॉल ऊपर के डेटा डिलीट होते जाएंगे और नीचे का नया डेटा ऐड होते जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिसाइकलर व्यू, बिकॉज इट रिसाइकल्स द नंबर ऑफ व्यूज जो यहाँ पे पड़े हैं ऑलरेडी। सो कंपेरेटिवली रिसाइकलर व्यू का कोडिंग पार्ट थोड़ा ज्यादा हार्ड रहता है स्क्रॉल व्यू से, बिकॉज नॉर्मल स्क्रॉल व्यू में एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा कोडिंग किया नहीं ना, राइट। ये बस हमारा एक्सएमएल फाइल में ही हो गया, स्क्रॉल व्यू यूज किया और उसके अंदर सारा डेटा मैंने डाल दिया स्क्रॉल व्यू में। आई विल गिव यू अ बेटर एग्जांपल, लेट मी लोड अनदर प्रोजेक्ट। So let's load any layout. जिसमें डेटा हो। Give me 1 second. I guess ये रहेगा, ओके। ओके, सो जैसे ये स्क्रीन हो गया, तो एज यू कैन सी थोड़ा बहुत डेटा हमारा स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा स्क्रॉल व्यू में डाल के रखा है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन यूजर का जो भी स्क्रीन साइज है, अगर सपोज जैसे मेरा डिवाइस है, तो मेरे डिवाइस में ऑलमोस्ट पूरा आ जाता है स्क्रीन पे, तो उसमें ना के बराबर स्क्रॉल यूज करना पड़ेगा। बट अगर कोई छोटे साइज के डिवाइस है, जैसे 5 इंच डिवाइस है, तो उसमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, बिकॉज अगर स्क्रॉल नहीं किया तो डेटा आधे थोड़ा थोड़ा डेटा स्क्रीन के बाहर जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रॉल व्यू यूज करके रखा है, राइट। तो नॉर्मल स्क्रॉल व्यू ऐसे केसेस में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा चेंज नहीं होने वाला, इतना ही डेटा रहेगा मेरे ये एक्टिविटी में, है ना। तो इसलिए ये सब केस में भी यूज स्क्रॉल व्यू, क्योंकि इसका बस इतना सा ही कोड है और इससे ज्यादा तो चेंज होने नहीं वाला कुछ, और हमें इसका कॉटलिन या जावा फाइल में भी चेंजेस करने नहीं पड़ते। बट द थिंग विथ रिसाइकलर व्यू इज कि रिसाइकलर व्यू का कोडिंग पार्ट बहुत ज्यादा है, और हमें सिर्फ एक्सएमएल पार्ट से काम नहीं चलेगा, we have to also do a lot of coding in our Kotlin file for this, because इसके लिए बहुत सारे अलग अलग चीजें रहती है which you need to know। तो लाइक जो रिसाइकलर व्यू रहता है, तो सपोज ये हमारा स्क्रीन है और हमें स्क्रीन पे सपोज कॉन्टैक्ट्स दिखाने हैं, एक कॉन्टैक्ट्स का पूरा ये एक्टिविटी बनाया है, और हर कॉन्टैक्ट का 2 डिटेल हम लोग दिखा रहे हैं। दैट इज पहला जो टेक्स्ट व्यू है हर कॉन्टैक्ट का, वो उसका नाम है, और सेकंड टेक्स्ट व्यू में उसका नंबर दिया है। तो दिस वन होल बॉक्स, एक रेड बॉक्स है, एक यूजर का एक लिस्ट है, एक आइटम है, ओके। सो दिस इज वन होल व्यू ग्रुप, एक यूजर का। ऐसे बहुत सारे यूजर्स के डेटा सेम डेटा रहेंगे, नाम और नंबर सबके। तो ये क्या करेगा रिसाइकलर व्यू, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही लोड करेगा, एंड जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं ऊपर के आइटम्स डिलीट करते जाएगा और नीचे से नए नए लोड करते जाएगा। तो हाउ डज इट डू इट, तो इट यूजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स कॉल्ड व्यू होल्डर्स, फिर अडेप्टर्स रहते हैं, फिर लेआउट मैनेजर्स रहता है, फिर व्यू बाइंडर्स रहता है। तो ऐसे 5 या 6 डिफरेंट चीजें रहती है विच यू नीड टू
कोड व्हेन यू आर यूजिंग अ रिसाइकलर व्यू। तो अभी सुनने में ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट लाइक आफ्टर यू सी लाइक 2 या 3 वीडियो देख लोगे ना यूट्यूब पे अबाउट रिसाइकलर व्यू डिटेल्ड वाले, तो उसमें आराम से पूरा रिसाइकलर व्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार ये समझ में आ गया ना रिसाइकलर व्यू, तो इट इज़ वेरी गुड बिकॉज ये हर जगह यूज़ होगा। आप जितने ऐप्स अभी बनाओगे ना कॉम्प्लिकेटेड वाले, थोड़ा सा भी, तो हर जगह आपको रिसाइकलर व्यू ही यूज़ करना है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो रिसाइकलर व्यू के लिए पहले व्यू होल्डर्स क्या होता है? तो व्यू होल्डर्स आर नथिंग बट ये जो अलग अलग एक एक व्यूज है ना, पूरा ये जो एक एक यूजर का जो बताया डेटा, तो इसको व्यू होल्डर बोलते हैं। तो एक व्यू होल्डर एक सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट करता है हमारे व्यू में। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे, इफ यू आर लुकिंग एट इंस्टाग्राम होम पेज, okay, so if you are looking at the Instagram homepage, one second, तो यहाँ पे ये जो है पूरा ये, तो ये पूरा जो एक यूजर का जो ये पूरा डेटा है ना, दिस इज वन सिंगल व्यू ग्रुप। उसका फोटो, फिर उसका यूजर नेम, यहाँ पे ऑप्शंस का बटन, फिर इमेज, फिर ये यहाँ पे ये 3 अलग बटन, फिर एक सेव का बटन, और फिर लाइक बाय में जो ये डेटा आता है, दिस होल थिंग इज वन सिंगल व्यू, ये व्यू ग्रुप, ओके सॉरी व्यू होल्डर। तो ये पूरा का पूरा जो है ना एक सिंगल व्यू होल्डर है। तो हमारा जो रिसाइकलर व्यू रहता है उसमें मल्टीपल व्यू होल्डर्स रहते हैं, राइट? तो एक बार में वो सपोज 3 या 4 व्यू होल्डर्स लोड करके रखेगा, फिर जैसे यू आर स्क्रोलिंग ऊपर वाले व्यू होल्डर्स डिलीट होते जाएंगे और नीचे वाले नए लोड करते जाएगा डेटाबेस से। सो दीज आर डिफरेंट व्यू होल्डर्स। और व्यू होल्डर्स का अडेप्टर्स रहता है। तो अडेप्टर क्या करता है, हमारा जो डेटाबेस है ना उसमें से जो डेटा, जैसे ये टेक्स्ट व्यू में डेटा क्या जाने वाला है, तो अभी हमारे रिसाइकलर व्यू को यही पता है ना कि यहाँ पे 2 टेक्स्ट व्यू है हर एक एक व्यू होल्डर के अंदर। हमारा रिसाइकलर व्यू क्या करेगा, वो बस व्यू होल्डर्स को प्लेस करने का काम करेगा। व्यू होल्डर क्या करेगा, व्यू होल्डर एक व्यू होल्डर के अंदर जो जो आइटम्स है ना उसको प्लेस करने का काम करेगा। और उसमें क्या डेटा डालना है वो कौन बताएगा, वो अडेप्टर बताएगा। अडेप्टर क्या करेगा, हमारा जो डेटाबेस है वहां से डेटा लेगा और उसको बाइंड कर देगा व्यू होल्डर के अंदर। बाइंड मतलब स्टिक कर देगा। और फिर वो व्यू होल्डर में एक एक करके जो व्यू होल्डर है वो सेंड करते जाएगा हमारे रिसाइकलर व्यू को, अडेप्टर सेंड करते जाएगा। और फिर रिसाइकलर व्यू एक एक व्यू होल्डर को लाइन से डालते जाएगा जैसे यूजर स्क्रॉल वगैरह करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे जैसे उन्होंने हर एक टर्म का डेफिनेशन दे रखा है। हमारा जो लेआउट मैनेजर रहता है वो रिसाइकलर व्यू को बताता है कि जो अलग अलग व्यूज है, टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट वगैरह, उसको कैसे हम लोग किस लेआउट में या किस ऑर्डर में हम लोग रखने वाले हैं। फिर हमारा जो व्यू होल्डर रहता है वो क्या करता है, वो व्यूज को रिसाइकलर व्यू को भेजता है। ये हमारा जो एक एक पूरा व्यू है ना व्यू ग्रुप, ये एक एक व्यू ग्रुप रिसाइकलर व्यू को भेजने का काम करेगा व्यू होल्डर। अडेप्टर हमारा क्या काम करेगा, अडेप्टर हमारा डेटा सोर्स जो रहता है, फायरबेस हो गया या गूगल क्लाउड हो गया या एसक्यूएल में डेटा स्टोर्ड है या जो भी फॉर्मेट में डेटा स्टोर्ड है, वो डेटा उठाएगा वहां से जो भी डेटा दिखाना है। और फिर उसको क्या करेगा, अडेप्टर विल बाइंड द डेटा फ्रॉम डेटा सोर्स टू व्यूज। तो व्यू होल्डर में जो डेटा डालना है ना, वो व्यू होल्डर को डेटा सेंड कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा, फिर जैसे ही रिसाइकलर व्यू पे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो रिसाइकलर व्यू को व्यू होल्डर भेजते जाएगा अडेप्टर हमारा। सो आई एम नॉट श्योर कि सबको सारा टॉपिक्स अभी समझ में आ गया होगा अच्छे से, बट आई होप बेसिक आइडिया लग गया होगा एक एक के फंक्शंस का, कि व्यू होल्डर का काम क्या रहता है, अडेप्टर का काम क्या रहता है, डेटाबेस तो इससे तो डेटा आएगा, और रिसाइकलर व्यू क्या काम करता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, इधर एक और एग्जांपल दे रखा है कि सपोज ये हमारा डेटा है वर्ड, ये हमारे डेटाबेस में डेटा है, एक स्ट्रिंग है ये। तो ये स्ट्रिंग क्या करेगा, अडेप्टर यहाँ से स्ट्रिंग उठाएगा, अडेप्टर व्यू होल्डर में डालेगा। और फिर जब हमारे इसको रिसाइकलर व्यू को और डेटा चाहिए रहेगा, लाइक यूजर स्क्रॉल कर रहा है, तभी वो अडेप्टर से डेटा, सॉरी व्यू होल्डर से डेटा उठा के वो व्यू होल्डर रिसाइकलर व्यू को दे देगा। तो मेन काम यहाँ पे अडेप्टर का रहता है, ये दोनों को, डेटाबेस को और हमारे रिसाइकलर व्यू को कनेक्ट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अडेप्टर। तो यहाँ पे 3 अलग अलग रिसोर्सेस है विच यू कैन यूज टू लर्न मोर अबाउट द रिसाइकलर व्यू। पहला तो हमारा ये इसका ही है, कोर्स में ही यहाँ पे इन्होंने दे रखा है यूज रिसाइकलर व्यू। तो ये कोड लैब में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरा, रिसाइकलर व्यू क्या रहता है, कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल्स एंड ऑल के साथ सब एक्सप्लेन किया, आइटम क्या होता है, अडेप्टर व्यू होल्डर एंड ऑल। तो एक बार ये रीड कर लो, एंड सबसे पहले तो ये रीड कर लो, और इसके बाद ये जो सेकंड है एक मीडियम का आर्टिकल है अबाउट रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पे भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है
कि रिसाइकलर रिव्यू क्या होता है, कैसे काम करता है नॉल। तो ये आर्टिकल भी यू कैन रीड, यहाँ पे उन्होंने एक एक टर्म और अच्छे से एक्सप्लेन किया है रिसाइकलर रिव्यू कैसे काम करता है, एंड प्लीज़ फोकस ऑन इट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये एक वीडियो है, इसमें अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है रिसाइकलर व्यू का एक एक पार्ट, कैसे काम करता है रिसाइकलर व्यू और क्या क्या डेटा स्टोर होता है। तो आई हाईली सजेस्ट, ये वीडियो 20 मिनट्स का है, इसमें बहुत अच्छे से एक एक फंक्शन उसने एक्सप्लेन किया है। बाइंड व्यू होल्डर क्या रहता है, अडाप्टर्स कैसे रहते हैं, और लेआउट मैनेजर कैसे बनाते हैं हम लोग, एक एक आइटम का जो बनाना रहता है व्यू, तो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये 3 रिसोर्सेस यूज कर लो रिसाइकलर व्यू के बारे में सीखने के लिए। एंड this is the conclusion of the today's session. So what I need you to do is, I hope कि अभी तक सबका एटलीस्ट यूनिट 1 हो गया रहेगा, बट इन केस यहाँ पे अभी कोई नया है, लाइक समवन इज अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट प्लीज यूनिट 1 कंप्लीट कर लो। आज ही ट्राई करो कंप्लीट करने का, 2 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा। एंड जो आज हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया, यूनिट 2 का पाथवे 1 और 2, जो हम लोगों ने ऐप बनाया, तो ये भी विद इन 2 और 2.5 आवर्स ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे। और ये जो है डिस्प्ले और स्क्रॉलेबल लिस्ट, तो ये हमारा रिसाइकलर व्यू वाला पार्ट है। तो ये वाला प्लीज खुद से एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन रिसाइकलर व्यू का जो कोडिंग वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में करेंगे। बट अगर आपने खुद से ट्राई नहीं किया है ना, तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो आप नहीं समझ पाओगे इम्प्लीमेंटेशन वाला नेक्स्ट सेशन का पार्ट। तो प्लीज खुद से ये तीनों जो रिसोर्सेस हैं, ट्राई एंड यूज इट, एंड ये देख लो। चाहिए तो सबसे पहले ये वीडियो भी देख लो, ये भी बेटर रहेगा, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसने। एंड आफ्टर दिस, तो यूनिट 1 सबका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका रहेगा, बिकॉज ये डे 2 को कवर किया था। फिर आज डे 3 को हम लोगों ने पाथवे 1 और 2 कंप्लीट किया यूनिट 2 का, और जो पाथवे 3 है हमारा, प्लीज वो खुद से ट्राई करो रिसाइकलर व्यू वाला, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और एटलीस्ट पाथवे 2 तक तो ट्राई करो कंप्लीट हो जाने का। अभी यू आर हैविंग 2 और 3 डेज, राइट? आज 14th है, 15th आज का पूरा इवनिंग है आप लोग के पास, 15th का पूरा डे है, 16th है पूरा। नेक्स्ट सेशन इज ऑन 17th, तो 17 दिसंबर को नेक्स्ट सेशन है। तो नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में हम लोग कवर करेंगे रिसाइकलर व्यू का पूरा इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग पार्ट, और एक ऐप बनाएंगे हम लोग ये रिसाइकलर व्यू के ऊपर बेसिक सा। तो विद इन आवर और 2 हमारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको ये आज के सेशन का, इफ यू आर वांट टू लाइक व्यू इट अगेन। तो यूट्यूब चैनल का भी लिंक ट्री पे दे रखा है, यहाँ पे जाके यू कैन वॉच इन द प्लेलिस्ट रोज के वीडियोस, अगर आपका कोई मिस हो गया। तो डे 1 वाज अबाउट एंड्रॉइड, डे 2 वाज अबाउट कॉटलिन एंड कॉटलिन पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द फर्स्ट ऐप, एंड आज हम लोग ने सेकंड ऐप कंप्लीट किया, रिसाइकलर व्यू का इंट्रोडक्शन। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई वुड लाइक टू कॉल साक्षी टू एंड दिस। So, guys, as we end today's session, I would like to extend my thanks to each one of you for attending and being so cooperative throughout the session. Looking forward to see you all again on 17th of December, which is on Friday. Yeah, and the feedback form must be shared in the chat box. Please fill it up. And yeah, the session is officially closed. Thank you so much. Have a nice day.